A morning devotion from Oil and Wine.
occupied until the kingdom shall be established in the earth. और कभी भी उस पर बैठ नहीं पाएगा जब तक Yes. इस पृथ्वी पर एक राज्य की स्थापना नहीं होगी। Glory departed. और महिमा वहां से चली गई। From those times, the glory was in the departing realm. और उस समय से उस परमेश्वर की महिमा रवानगी पर थी। Slowly, slowly, the glory was departing from Israel. धीरे धीरे वो महिमा परमेश्वर की इस्राएल से जा रही थी। Priesthood was corrupted over a period of time. और याजकता जो थी एक समय के अंदर ही अंदर भ्रष्ट हो चुकी Finally, थी। that was dismissed by God. और अंत में परमेश्वर ने उसको खारिज कर दिया। Means the time factor is important again. और परमेश्वर के लोगों समय की अवधियां बहुत ही महत्व रखती हैं। So we see in this vision here, और यहाँ पर इस दर्शन में हम देखते हैं a throne was shown unto Isaiah. और एक सिंहासन ऐसाया को दिखाया गया। The significance was, Isaiah, don't look at these thrones that you see, but there is something that will forever be in the midst of God's people that's on the way. और ऐसाया को कहा गया कि Yes. सिंहासन की ओर ना ताक, परंतु कोई ऐसी चीज आने वाली है जो परमेश्वर के लोगों के लिए युगानुयुग तक सदा के लिए रहेगी। Now remember, Isaiah spoke these things because he saw the glory of him and began to speak of him. Praise God. आश्चर्य की बात नहीं कि जब से आइज़ाया ने इस महिमा को देखा वो इसकी चर्चा करने लगा परमेश्वर की महिमा के लिए। Another one thing, और मैं एक चीज जानता हूँ, the one that Isaiah saw there in the throne was the Lord Jesus Christ. और वो जिसको सिंहासन पर आइज़ाया ने देखा था वो प्रभु यीशु But you know that his throne will never ever be vacated. और आप जानते हैं कि उसका सिंहासन कभी भी खाली नहीं किया His throne shall be forever and ever and ever without end. और क्योंकि उसका राज्य जो है वो सदा सदा युगान युग और कोई उसका अंत नहीं होगा। So we see Isaiah seeing it with his eyes. तो हम देखते हैं कि आइज़ाया अपनी आंखों से इसे देख रहा है There was something coming in. और उसने देखा कि कोई वस्तु आ रही है Anybody else? और Before anybody else. किसी के आने से बहुत पहले ही He saw this glory of the Son, the Lord Jesus Christ. और उसने इस पुत्र की महिमा जो प्रभु यीशु मसीह था उसको His throne, और उसका सिंहासन देखा his reign, और उसके राज्य को देखा and he saw that everything else that would come in and through the Lord Jesus Christ. और उसने प्रत्येक वस्तु को देखा जो प्रभु यीशु मसीह के साथ आएगी। And you know one thing, और एक चीज आप जानते हैं upon the coming in of Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के आने पर we see that हम देखते हैं everything that was lost was restored back by his coming in. और उसके आने से प्रत्येक वस्तु जो खो चुकी थी Yes. उसे फिर से बहाल किया जाएगा Throne was restored, और वो सिंहासन फिर से बहाल हुआ, priesthood was restored, याजकता फिर से बहाल हुई the spiritual house was restored. और आत्मिक भवन फिर से बहाल हुआ। Oh, do you see that yourself, saints of God, this morning? और क्या आप आज सुबह इसको अपने आप में देख सकते So हैं? the vision that Isaiah saw there, वो दर्शन जो आइज़ाया ने वहां देखा था something that God has in store to bring forth and usher in a couple of years. और वो कुछ ऐसी वस्तु थी जो कि In 20 years. ने कुछ वर्षों के अंदर ही उसको लाने के लिए दिखाया था Will come forth in and through Jesus Christ. और वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आएगा। So the vision that Isaiah had और वो दर्शन जो आइज़ाया ने देखा is a vision where you and I are involved, the saints of God. और वो दर्शन ऐसा है जिसमें आप और मैं भी सम्मिलित हैं Do परमेश्वर। you believe that you are part of that throne which Isaiah saw? आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप भी उस सिंहासन का भाग हैं जो आइज़ाया ने Jesus said, देखा। यीशु मसीह ने कहा come even as I overcame and sat down with my Father in his throne. तुम विजयी हो जिस प्रकार से मैं विजयी हुआ हूँ और अपने पिता के सिंहासन पर बैठा हूँ। So saints of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, to go so far into many things, और बहुत सी वस्तुओं में बड़ी दूर तक नहीं जाना चाहिए। you need your eyes to be open to see that you are part of that vision which Isaiah
Isaiah saw. परंतु आपकी आवश्यकता यह है कि आपकी आंखें खुले ताकि आप देख सके उसी दर्शन को जो इज़ाया ने देखा। The vision belongs to us. और वो दर्शन हमारे लिए है, The vision is ours. दर्शन हमारा है। It is to see its fulfillment in our life. और ये हमने देखना है कि उसकी परिपूर्णता हमारे जीवनों में हो। How much more our eyes need to be open तो कितनी अधिक हमारी आंखें इसके लिए खुलनी to चाहिए see the one who is on the throne. कि हम उसको देखें जो सिंहासन पर विराजमान है। When we turn to the book of Revelation again, और फिर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की ओर आते हैं just for a moment, एक क्षण के लिए। we see the book of Revelation, chapter 3. प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय। The chapters have been, it has been put into chapters for our convenience. और ये अध्याय हमारी सुविधा के लिए बनाए गए हैं। And we see in verse 21, 21वें पद में हम देखते हैं the Lord talks about a condition that is prevailing in the midst of God's people. और प्रभु वहां पर एक परिस्थिति को बतला रहा है जो परमेश्वर के लोगों के बीच में है। The Lord says to him that overcometh, और प्रभु कहता है कि जो विजयी होगा, will I grant to sit with me in my throne? मैं उसको अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। He says, और वो कहता है, and John records that here. और यूहन्ना इसको यहां पर लिखता है। The Lord shows him what is happening with God's people. और परमेश्वर उसे दिखाता है कि परमेश्वर के लोगों के साथ क्या हो रहा है। Despite that he says there will be an overcoming people. और उसके बावजूद वो कहता है कि एक ऐसे लोग होंगे जो विजयी होंगे। Him that overcometh, और वो जो जयवंत होगा, I will cause him to sit in my throne. मैं उसको अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। And then as we turn to chapter 4, और फिर जब चौथे अध्याय की ओर not only he spoke to John on the throne, but he began to shout to him at the very throne. और न केवल वो अब यूहन्ना को सिंहासन के बारे में बतला रहा है, परंतु अब उसने उसको वो सिंहासन दिखा रहा है। 2 we read like this. और दूसरा वचन हम इस प्रकार, And immediately he was in the spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one that sat on the throne. और तत्काल ही मैं आत्मा में आ गया। क्या देखता हूं कि आकाश पर एक तख्त रखा हुआ है या सिंहासन, उस पर सिंहासन है और उस पर एक व्यक्ति विराजमान है। Saints of God, whatever the conditions may be today in the church world, और परमेश्वर के प्रियजनों, कलीसिया की परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, God has not changed His program. परमेश्वर ने अपना कार्यक्रम नहीं बदला। God has destined our people to be in His throne. और परमेश्वर ने एक ऐसे लोग बनाए हैं जो उसके सिंहासन तक आएंगे। His purpose can never be altered or changed. और परमेश्वर का जो उद्देश्य है कभी बदला नहीं जा सकता। It is true as we turn again to Isaiah, और ये बात सत्य है जब इज़ाया की ओर हम फिर the वापस earthly ceased, और the things which were earthly, the throne, the reign and everything ceased. और वो चीजें जो पृथ्वी की थी, वो सिंहासन और प्रत्येक वस्तु, अब वो बंद हो The गई। glory departed from Israel. और वो महिमा इस्राएल से जाती रही। Nation was scattered later on. और बाद में राष्ट्र भी बिखर गया। Throne was vacated. और वो सिंहासन खाली हो गया। Priesthood came to an end. और याजकता का अंत हो गया। You know one thing, when all this earthly came to an end, something heavenly began to usher in. और आप जानते हैं कि जब ये पृथ्वी की वस्तु एक अंत में आ गई, तो उस समय स्वर्ग की वर्ण होने शुरू किया। This is what is significant. और वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण There's a बात, divine principle there. और वहां पर एक ईश्वरीय नियम है। Which is earthly comes to an end, but which is heavenly will commence, saints of God. और जो पृथ्वी का है जब उसका अंत हो जाता है, Yes. तब एक स्वर्गिक है जिसकी शुरुआत होती है। That will commence in the earth. वो इस पृथ्वी
पर उसकी शुरुआत होगी। which is earthly ceased there. और वो पृथ्वी का जो था वो बंद हो गया Heavenly came in. और तब स्वर्गिक आया There is one upon the throne now, और अब उस सिंहासन पर एक विराजमान throne which is above every other throne, और वो सिंहासन जो सारे सिंहासनों से ऊपर है throne which is above all, और वो सिंहासन जो सबसे ऊंचा है and a priesthood which will never come to an end. और एक याजकता जो जिसका अंत कभी ना होगा। But the earthly one came to an end. परंतु वो संसारिक जो थी पृथ्वी की थी उसका अंत हो गया। Concerning this priesthood, it says he is a priest forever. परंतु इस याजकता के विषय में कहा गया Yes. है कि ये याजकता सदा सदा रहेगी And he himself is the house. और वो स्वयं वो भवन है। He filled the house. उसने भवन को भर दिया। Oh my God, may God open our eyes to see और this. परमेश्वर हमारी आंखें खोले कि हम इसको देखें। That's a God, really wants to bring us to a place that our eyes would behold things beyond even in these days. और परमेश्वर हमें एक ऐसे स्थान में लाना चाहता है Yes. जहाँ पर कि हमारी आंखें खुल जाए कि हम इन वस्तुओं को देख सकें। The earthly comes to an end. और पृथ्वी की चीजें जो है वो And the earthly comes to an end. और पृथ्वी की वस्तुओं का अंत The होता है heavenly commences then. और तब स्वर्गिक वस्तुओं का शुरुआत It होती is है। true even in our lives. और ये हमारे जीवनों में भी सत्य है। The earthly must come to an end in these days. और इन दिनों में वो पृथ्वी की वस्तुएं खत्म And we होंगी will begin to see the heavenly ushering into our lives. और तब हम देखेंगे कि वो स्वर्गिक वस्तुएं हमारे जीवनों में शुरुआत कर रही हैं। Oh, may the Lord help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे। When the earthly breaks down, और जब वो पृथ्वी की चीज टूट जाती है and I can tell you the heavenly will never collapse. और मैं कहता हूं कि वो स्वर्गिक वस्तु जो है कभी गिरेगी नहीं The earthly will always break down, saints of God. और सब जो पृथ्वी की वस्तुएं हैं वो सदा ही टूट But the जाएंगी। heavenly will never collapse, will never break down. परंतु स्वर्गिक वस्तुएं कभी भी ना टूटेंगी और ना ही बंद होंगी। And there is disappointment in our lives. जब हमारे जीवन में निराशा होती है The heavenly goes on without any hindrance. तो फिर वो स्वर्गिक जो है बिना किसी रुकावट के That's what we आगे see बढ़ता जाता in है। the life of the Apostle Paul. और यही हम पौलुस प्रेरित के जीवन में देखते There हैं। are disappointments, और वहां पर मायू there are trials and troubles, और वहां पर परीक्षाएं हैं, कठिनाइयां हैं। and which is heavenly goes on in their lives. परंतु वो जो स्वर्गिक है उनके जीवनों में वो चलती जाती है Unhindered, it moves on. और बिना किसी रुकावट के वो आगे बढ़ती है। That is why Paul survived all his disappointments. और इसी कारण से पौलुस जो था अपनी सारी जो उसकी निराशाजनक परिस्थिति That's why he got through through those last days, the last terrible days in his very life. और उसके जीवन में इसी कारण से उसके जो अंतिम भयानक दिन थे, भयंकर दिन उनमें से भी The days गुजरा। of his imprisonment, और उसके कैद के दिन with everything going into pieces, सबके समस्त वस्तुएं टूट कर बिखर गई how he got through triumphantly over those situations. और किस प्रकार से जयवंत होकर उस परिस्थिति पर से वो ऊपर उठा। The vision of Isaiah was a reality even in the life of Paul. और वो आइज़ाया का दर्शन पौलुस के जीवन में भी एक वास्तविकता थी। Spiritual declension in the days of Paul. पौलुस के दिनों में भी आत्मिक उतार था Powers coming into God's people and the church. और परमेश्वर और उसकी कलीसिया के अंदर गलतियां आ रही False prophets creeping into the church. और झूठे भविष्यद्वक्ता कलीसिया में आ रहे थे Things were all going wrong even in his time. और उसके समय पर भी कलीसिया में सारी वस्तुएं गलत हो रही थी। And yet, फिर भी you see Paul's writing. पौलुस के लेखों को देखें, He is not a discouraged man. और वो एक निराश व्यक्ति नहीं था। When you read the letter of Paul to the Ephesians, जब पौलुस का पत्र इफिसियों को जो उसने लिखा हम पढ़ते हैं, sometimes by reading the letter we feel that everything was so well with God's church at that time.
कई बार जब हम इफिसियों की पत्री पढ़ते हैं तो हम महसूस करते हैं कि परमेश्वर की कलीसिया के अंदर प्रत्येक वस्तु बहुत भली भांति सही चल रही I है। want to tell you that the condition of even the church in Ephesus was not very good. और मैं ये कहता हूं कि कलीसिया जो इफिसस की थी उसके अंदर भी चीजें सही नहीं थी। The condition of God's people in general, it was not very good. और आम रीति से परमेश्वर के लोगों की परिस्थिति कोई अच्छी नहीं थी। And yet we see when you read the book of Ephesians, फिर भी जब हम देखते हैं, जब इफिसियों की पत्री you हम read the matchless presentation of the glorious church. और वहां पर एक अद्भुत प्रस्तुति देखते हैं उस महिमा युक्त कलीसिया की। Why did Paul present that church there to them? और ये इस प्रकार की कलीसिया का प्रस्तुत उसने क्यों किया उनके Because his eyes did behold that finished product, that glorious church. और क्योंकि उसने उसकी आंखों ने उस पूरी बनी हुई वस्तु जो महिमा युक्त कलीसिया थी उसको देख लिया। You know, the Apostle Paul saw God's finished work, the glorious church that God having for himself. और उसने परमेश्वर के उस पूरे कार्य को देख लिया था जो उसने किया था उसके लिए। You know, Paul could see beyond his times. और पौलुस जो था अपने समयों से आगे देख पाया In vision, he saw everything. और उस दर्शन में उसने समस्त वस्तुओं को God having his purpose accomplished in and through a people. कि परमेश्वर अपने उद्देश्य को एक लोगों के बीच में और उनके द्वारा पूरा करेगा। That is why he did not go into pieces. और इसी कारण से वो टुकड़े टुकड़े नहीं हुआ। He saw it with his spiritual eye. उसने अपनी आत्मिक आंखों से ये सब कुछ देखा। And this is of great importance to you and to me. और यही बहुत बड़ा महत्व आप और मेरे लिए है। Look at the conditions of God's people और today. देखिए परमेश्वर के लोगों की परिस्थिति कैसी है। If you don't, you can look at it and see what's happening. और यदि आप उसको सहन कर सके तो देखेंगे क्या हो रहा है। It was similar to the days of the Apostle Paul. और वही बात अपोस्तल पौल, प्रेरित पौलुस के जीवन के समय में। Paul saw in those days, they are seen in greater measures in our day. और वो चीजें जो पौलुस ने अपने दिनों में देखी थी अब और बढ़कर हमारे दिनों में हो रहे हैं। Divisions, और विभाजन हो रहे हैं schisms, और conflicts, झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है world coming into the church, और दीवारें बट रही हैं कलीसिया के अंदर world coming into the church. और संसार कलीसिया में आ रहा है।